In the heart of New Delhi at Trang Bhavan Auditorium, a crucial event unfolded on September 19th. The National Workshop on eNAM 2.0 and agri-marketing reforms brought together experts and stakeholders. Various companies showcased their presentation on the upgraded eNAM 2.0 platform, shedding light on how it benefits farmers. The highlight of the day was the open discussion where farmers, traders, and policymakers engaged in meaningful conversation about the future of agricultural marketing. It was a day of learning, sharing, and collaboration, all aimed at making agriculture more efficient and farmer-friendly in India. Krishi Jagran team interacted with the guests who presented their thoughts during the open discussion. Let's hear what they said. Once we have such tools and once it is hosted on eNAM or any other portal, I'm pretty much sure that it presents itself as an avenue for creating new financial instruments out of such asset classes. Kisan Goshti and registration camps. We organize Kisan Goshti and registration camps at Gram Sabha level till now. Throughout the Uttar Pradesh, we have conducted 250 Kisan Goshtis so far, in which 100 to 125 participants participate in each Goshti. Traders training program on daily basis. I am Dr. S. Natarajan IAS, Director Agriculture Marketing, Agri Business, Tamil Nadu. Tamil Nadu has done wonderful work in eNAM marketing. There are nearly 157 markets, mandis are into the eNAM markets. We are the, proudly say, we are all the payments are only through e-payments only. All the eNAM markets, all payments are in e-payments, and also trade also in online trades. That is the maximum trades, 100% trades are in online trades. That fetches nearly 10 to 15% higher price for the farmers. That is helpful for the farmer in such a way. It will long run, it will helpful to the farmers. So I am Dr. Prithvi, Secretary Agriculture and Horticulture, State Government of Rajasthan. So the today's conference about the eNAM and the digitalization and bringing the agriculture into the manifold of the e-commerce platform and improving the agricultural infrastructure systems in the mandis. So really helpful, and I think Rajasthan has done a wonderful job in last couple of years. And the overall the contents today's conference is going to enrich the states as well as their marketing, agriculture marketing officers coming from the different states. मैं अबू बकर सिद्दीक, सेक्रेटरी एग्रीकल्चर झारखंड। आज यहाँ पे eNAM 2 का जो नेशनल लेवल वर्कशॉप रखा गया है। हम लोग सब जानते हैं अभी पूरा विश्व में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, सभी सेक्टर में डिजिटल इन्फ्लुएंस इतना बढ़ गया है, तो वो डिजिटल जो रेवोल्यूशन जो हो रहा है उसका बेनिफिट हमारा किसान भाइयों को कैसे मिले, ये उसके लिए एक अच्छा एग्जाम्पल है eNAM। जो किसान अभी फॉर एग्ज़ाम्पल झारखंड में कई किसान अभी जम्मू कश्मीर से किसानों के साथ सेब का व्यापार कर रहा है, या हमारा झारखंड में फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स काफ़ी होता है, या झारखंड का कुछ जो ओरिजिनल प्रोड्यूसर्स है वो बंगाल का या कर्नाटका का या इवन आउटसाइड द कंट्री ऑल्सो भेजने के लेवल पे किसान बढ़ रहा है। तो टेक्नोलॉजी का जो बेनिफिट को यूज़ करते हुए eNAM पोर्टल के माध्यम से उसमें किसान अपना रजिस्टर करते हैं, बायर रजिस्टर करते हैं, तो वर्चुअल मार्केट में दोनों मिलकर बिजनेस करते हैं। मैं फैज़ अहमद किदवाई, एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। आज हम लोग ने एक eNAM 2.0 और एग्री मार्केटिंग रिफॉर्म्स पर एक नेशनल वर्कशॉप रखी है, जिसमें राज्यों के मंडी बोर्ड्स के मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, कृषि सचिव हैं। हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि eNAM जो अभी लगभग 1400 मंडियों में लागू है, वो देश की अधिक से अधिक मंडियों में लागू हो और मंडियों के आपस में ट्रेड बढ़े। इसके साथ साथ इसको हम ONDC प्लेटफॉर्म से जोड़ें ताकि ऑनलाइन मार्केटिंग के और चैनल्स हमारे कृषकों को उपलब्ध हो सकें, किसान भाइयों को। हम एग्री मार्केटिंग रिफॉर्म्स पर भी काम कर रहे हैं, जिसमें हम चाहते हैं कि वन नेशन वन मार्केट के सिद्धांत पर पूरे देश में एग्री ट्रेड में कम से कम बैरियर्स हों, आसानी हो
ताकि इसका लाभ किसानों को और कंज्यूमर्स को मिल सके। धन्यवाद। जी नमस्कार, मैं श्रीमन शुक्ला हूँ, कमिश्नर और मैनेजिंग डायरेक्टर स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड मध्य प्रदेश। आज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ई नाम पर जो एक दिवसीय कार्यशाला रखी गई है, मुझे लगता है कि ये कार्यशाला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इससे स्टेट्स को ई नाम 2.0 को आगे ले जाने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। जो भी आगे आने वाले चैलेंजेस हैं और जो स्टेट्स से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, कैसे हम उसे आगे ले जा सकते हैं, इस मामले में ये वर्कशॉप बहुत उपयोगी साबित होगी। I am Lakshmi Bai, Director of Agriculture Marketing, Telangana Government. The primary objective of ENAM is to integrate all the markets at the state level in the initial stages. Eventually, we have to integrate all the markets across the country through a platform that is called ENAM platform, that is online platform, so that we can digitize all the transactions which are happening in the regulated market, so that we can have a electronically, scientifically discovered price. मेरा नाम फयाज़ अहमद है, मैं जजना फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से हूँ और हमारी जो कंपनी है वो उसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है SFAC और एक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो हमारी CBBO है। तो हमारी रजिस्ट्रेशन 2021 में हुई थी और तब से लेकर के हम इस FPO पे काम कर रहे हैं। तो इस FPO में अभी तक हमने करीबन 600 फार्मर्स जो है वो अभी तक इससे जुड़ चुके हैं, जिनसे हम अपना प्रोड्यूस लेते हैं और जिनको हम सारी सहूलियातें इस FPO के थ्रू से दे रहे हैं। तो अभी आप देख रहे हो कि हमारे पास कितनी वैरायटियां हैं जो फार्मरों से लेते हैं, जैसे डिलीशियस है, नाक है, चंबूरा एप्पल है, गोल्डन डिलीशियस है और ये ग्रीन वालनट्स भी हमने लाए हैं जो हमने मतलब खसूसन यहाँ पे डिस्प्ले करने के लिए हमने लाई हुई थी। और इसके साथ साथ हमारे साथ जो फार्मर्स है वो मानसबल से भी है और मानसबल लैक जो है वो पूरी मतलब इंडिया में वो मशहूर है जो वहाँ से हमने लाया है फार्मरों से। और ये उसका सीड है, ये भी खाने में इस्तेमाल करते हैं और ये जो है ये सब्ज़ी में इस्तेमाल करते हैं, सब्ज़ी के खाने में इस्तेमाल करते हैं। धर्मेंद्र कुमार मौर्य, सिटी ब्लॉक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से। मैम हम लोग मिलेट्स पे काम कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास बाजरे का कुकीज़ है, बाजरे का टोस्ट है, बाजरे का केक भी है मैम, और मल्टीग्रेन आटा भी है। और ये मेरा बाजरे का कुकीज़ है और ये बाजरे का टोस्ट है। और एक प्रोडक्ट है जो कि अभी हम लोग ने लॉन्च किया है, ये केक है बाजरे का, और अभी मार्केट में हम लोकल मार्केट में ही सेल कर रहे हैं। और हमारे FPO में लगभग 500 फार्मर्स जुड़े हुए हैं और सभी हमारे इस FPO से जुड़ कर सब लाभ ले रहे हैं मैम।